Hello everyone, welcome to Renter's Approach to Labasana. Today we are going to start something very special, something which renters use while solving the prelims paper to clear the cutoff with a good margin. People who repeatedly write mains, they clear the prelims very comfortably. Those who crack the code of prelims, this is something which they use. They use the PYQs. They use the pattern which UPSC follows while framing the questions, and they have cracked that pattern. They have developed that mastery on PYQs, on the patterns, so that they are able to write the mains easily. And यही चीज अब आपको करनी है, that you have in the coming 2 months you have to practice enough. You have to do the enough practice so that you develop the mastery over PYQs. एंड जो उसमें उनका जो पैटर्न है क्वेश्चंस बनाने का, यू डेवलप द मास्टरी एंड सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रीलिम्स इजीली. Just very small announcement that if you are getting this video on your YouTube feed, you must subscribe the channel because ज़रूरी नहीं है कि एल्गोरिथम आपको दोबारा ये वीडियोस दिखाए. And there will be multiple sessions from 2020 to 2025 where I will be solving the PYQs and will tell you how to approach this question and if such kind of questions come in the exam. So basically, with the help of PYQs, we will develop the aptitude of solving the prelims. So welcome to Prelims Aptitude Mastery. This is something which we are going to start with this video. And just one small thing. या आपको डाउट हो रहा है यार कि ये सब वीडियोस तो यूट्यूब पे बाकी चैनल्स पे मिल जाएगी, एंड देयर आर सम पेड इनिशिएटिव्स एज वेल. टेलीग्राम पे या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले प्रोवाइड करते हैं. ये उससे कैसे डिफरेंट है, दैट देखो यार, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग सच कोर्सेज, दे आर समवन हु हैव एग्जिटेड द यूपीएससी जर्नी. अब ये नहीं है कि वो रिडंडेंट हो रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है. दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस पीपल देन मी, जिन्होंने 6 अटेम्प्ट्स में अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है. तो दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस देन मी, बट आई एम समवन हु इज करंटली इनटू दिस एग्जाम. मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में दिया था एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स. इन 2024 इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड आई स्कोर्ड अराउंड समथिंग 78, which was slightly below, away from the cutoff, and I could not clear the prelims, obviously. But this time in 2025, I developed the aptitude. I practiced PYQ enough, due to which I was able to clear the prelims. And not only just me, my friends who were preparing with me, they were able to develop that aptitude, and they cleared the prelims and wrote the first mains in 2025. So आज मार्कशीट आई है. So today is 11th March when I'm recording this video. तो आज मार्कशीट आई है एंड माई स्कोर इज समथिंग अराउंड 95.22 एंड कट ऑफ रही है 92.66. सो नॉट अ बिट मार्जिन, बट या फ्रॉम 78 to 95, ये जो 17 मार्क्स का जंप है, ये इस एप्टीट्यूड के कारण है, इस लॉजिक के कारण है जो हमने PYQ से डेवलप किया है. एंड दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू tell you, I'm going to teach you in the very next videos, so that in the next 2 months you will be able to develop that mastery over the PYQs, so that questions जब आएंगे आपके पेपर में, you will be able to think rationally, you will be able to solve with confidence. एंड जो बच्चे मार्जिन पे अटक रहे हैं, दैट कट ऑफ अगर 92.66 है, तो मेरे काफी फ्रेंड्स के जो भी मार्क्स आए हैं वो 88, 85 ऐसे कुछ मार्क्स आए कि बिल्कुल मार्जिन पे अटके हैं. अगर 2 से 3 क्वेश्चन और ठीक होते तो दे वुड हैव बीन राइट इन द मेंस, बट उनका नहीं हुआ. एंड दिस इज समथिंग विच a lot of people face. So if you are stuck on margin, so these videos are for you. Don't forget to subscribe the channel. Maybe the algorithm may not recommend you again. So yes, today in the very first video I will be telling you about something basic, because यार अगर मैं आपको डायरेक्टली PYQs में बताऊंगा ना, it can be a confusing thing. थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है वो चीज, तो I don't want to confuse you. तो मैंने सोचा लाइक इन द वेरी फर्स्ट वीडियो आई गिव यू सम टेम्पलेट्स की ऐसे ऐसे ट्रैप्स होते हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक डेवलप्स होते हैं जहां यूपीएससी ट्रैप में डालता है बच्चे को, एंड एस्पिरेंट्स फॉल इनटू द ट्रैप एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सच अराउंड 20-22 ट्रैप्स. तो 20 से 22 ट्रैप्स के आसपास हैं, एंड वी विल बी डेवलपिंग द बेसिक थिंग अबाउट दीज थिंग्स. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो we will be starting with 2020.
2020, my initial plan is to do with 2020 to 2025, but I am thinking to start with from 2018. So yes, it depends on time. Also, my throat is not doing well, so that's why these videos are getting late. Uh, so yes, I'm thinking, but yeah, most probably it will be from 2020. But if my throat is will support me, I will be starting with 2018, from then 2019 and 2020 and 2025, all the 8 years. So before starting this, I just want to tell you one small thing, something which is very important for you to proceed further. Something is that knowledge of static. Knowledge of static is very important. You cannot ignore this. स्टैटिक इज द किंग। 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आपकी नॉलेज से सॉल्व करने होंगे, जो हर एस्पिरेंट करता है, जो मेंस लिखने वाले बच्चे करते हैं, जो हमने भी किया था। आपको 35 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपकी स्टैटिक नॉलेज से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे 65 क्वेश्चन, उसमें ये एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा। 65 में से भी 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आप शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इट इज लाइक 55 क्वेश्चन। इन 55 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 35 क्वेश्चन है एंड इफ यू गेट 30 करेक्ट, 5 सिली मिस्टेक्स हो गई, तो आउट ऑफ दोज 55 यू हैव टू रोट 30 क्वेश्चन करेक्ट। विद दिस मेरा एक रूल है, आउट ऑफ 100 माई रूल इज 90 30 90 10। इसको सब डिवाइड करें तो 60 30 10। मेरा जो रूल है वो 90 के आसपास अटेम्प्ट करने हैं। इफ आई अटेम्प्ट 90 तो मैं 10 क्वेश्चन को स्किप कर सकता हूँ, एंड विद आउट ऑफ दोज 90 आई जस्ट नीड 30 करेक्ट एंड 60 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट। आपका स्कोर जो बनेगा वो बन जाएगा 100, 120 माइनस 20, तो आपका स्कोर बनेगा 100 एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इजली। सी सेट आपको संभालना है। सी सेट में मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है उतना सी सेट के लिए मेरे पास, एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। बट यस, प्रीलिम्स में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इफ यू आर स्टक ऑन मार्जिन। इवन मार्जिन अगर वो 10 से 15 नंबर का भी है ना, तो 15 के आसपास नंबर का भी है, यू कैन इजिली गेन 20 मार्क्स if you watch these videos and develop and practice the PYQs frequently. And just very much disclaimer before starting this video, देखो यार, इसमें ना ये नहीं है कोई रामबाण नहीं है, ये कोई ऐसा लास्ट ब्रह्मास्त्र नहीं है कि यार इससे ही प्रीलिम्स सॉल्व होगा। अगर आपका स्टैटिक नॉलेज रेडी नहीं है तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा, आपका चांस बहुत कम हो रहा। वो तुक्केबाजी से हो जाए तो हो जाए, बट एक सीरियस एस्पिरेंट विदाउट स्टैटिक नॉलेज के कारण प्रीलिम्स नहीं होता है। तो दीज थिंग्स, दिस एप्टीट्यूड विल हेल्प यू टू ऑगमेंट योर मार्क्स, टू एनहेंस द पॉसिबिलिटी कि अगर मार्जिन पे अटके हो, इफ यू आर स्टक ऑन मार्जिन, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। सो दिस इज समथिंग। सो माई मंत्रा इज नॉलेज फर्स्ट। जहां नॉलेज से सॉल्व हो रहा है वहां नॉलेज का सॉल्व करना है। वेयर द क्वेश्चन विच इज समथिंग यू हैव रेड इन स्टैटिक सोर्सेज, समथिंग विच डिमांड्स द नॉलेज ऑफ एन एस्पिरेंट, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद द नॉलेज। देन कम्स एप्टीट्यूड, देन कम लॉजिक, देन उसके बाद ट्रिक, उसके बाद कंप्लीटली गेसवर्क, और एक लास्ट में चीज आएगी आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि भाई नहीं आता तो छोड़ दो, अननेसेसरी उसमें रिस्क नहीं लेना। कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अच्छा होता है, वो सोचे सो अटेम्प्ट करते हैं, बट आई एम नॉट दैट वन, सो आई विल नॉट बी सजेस्टिंग यू दैट। तो सबसे पहला है कि भाई आपको नॉलेज पर रिलाई करना है। जहां नॉलेज से नहीं हो पा रहा वहां एप्टीट्यूड अप्लाई करना है, जहां एप्टीट्यूड से नहीं हो पा रहा वहां लॉजिक से करना है। लॉजिक जो भी आपको बताया जाएगा, लॉजिक से नहीं हो पा रहा वो तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो वो वहां पर अप्लाई करनी है। उसके बाद नहीं हो रहा एंड स्टिल यू आर लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट लाइक यू हैव अटेम्प्टेड ओनली 70-80 क्वेश्चंस, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें फिर कुछ गेस वर्ड्स होंगे, एंड वी विल डेवलप दैट लाइक दीज थिंग्स विद द प्रैक्टिस फ्रॉम 2020 टू 2025। तो ये सब चीजें वहां से होगी। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, सबसे पहला जो एक लॉजिक है, जो ट्रैप है यूपीएससी का, वो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन इट इज गिवन, जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
or it is something which is defined in the constitution. You have to be conscious in that moment. You have to be aware in that moment. You can't take that question lightly. और जब भी ऐसा दिया होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जनरली इनकरेक्ट. आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आपने बेरट पढ़ा है. अगर आपने पढ़ा है ये सब तो वो चीज आपको री इन्फोर्स करेगी एंड यू विल बी एबल टू गेट दीज क्वेश्चंस इजिली करेक्ट. तो ये आते हम ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, ये 2020 से लिया है मैंने. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स. अब लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी ने दिया है. जुडिशियल इनोवेशन हम इसे बोलते हैं. इफ इट इज जुडिशियल इनोवेशन एंड वी रीड व्हेन वी रीड द लक्ष्मीकांत, व्हेन वी रीड द बेरट, वी डोंट फाइंड एनी मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है. 1973 की जजमेंट के बाद बेसिक स्ट्रक्चर आया है और कोई फॉर्मल अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट के थ्रू नहीं हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है. जब कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं तो उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Second statement is the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. देखो, जुडिशियल रिव्यू भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. अब यहाँ जो बोला जा रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, इसका मतलब है कि यार एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा. जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13 एंड 32, बट एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू कहीं मेंशन नहीं है. ठीक है, वो एक टाइप से इसको भी बोल सकते हैं कि भाई जुडिशियल इनोवेशन है या जुडिशियली डिराइव्ड चीज है वो. तो सेकंड स्टेटमेंट विल आल्सो गेट रॉन्ग एंड आर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. कम टू क्वेश्चन नंबर 11. ये शायद मैंने 2021 से लिया है या 2022 से है. लेट्स सॉल्व इट. Pursuant to the report of H.N. Sanyal committee, the Contempt of Court Act was 1971 was passed. चलो फैक्ट है, हमें नहीं पता. Let's leave it for the ones. The Constitution of India empower the Supreme Court and the High Court to punish for the contempt of themselves. हाँ, हम पढ़ते हैं ये. इसका आर्टिकल आप बताना क्या है कमेंट सेक्शन में. वी रीड दिस कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट की पावर है और हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट की पावर है. तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, तो इसको दो दो काट. चलो इन लाइक इनिशियली इसको भी एज्यूम करते हैं कि दैट वी डोंट नो, कि हमें नहीं पता कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है. लेट्स कम टू द थर्ड स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. आपने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, आपने पूरा बेरट पढ़ लिया, कहीं देखा कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया है? कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा ना. जो चीज आपने नहीं पढ़ी, आपने लक्ष्मीकांत को इतनी बार पढ़ा है, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज डिफाइन हो रही है तो समथिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने वो लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ी तो इट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर नहीं है. ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत सारी चीजें जो लक्ष्मीकांत कवर नहीं करता, बट इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. एंड नाउ रीड इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, तो किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस एक्ट में उस चीज को डिफाइन किया होगा या कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिफाइन किया होगा. जो बेसिक एप्टीट्यूड होगा या जो कॉमन सेंस होगी ना, वो यही बोलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, उसमें आपको बता सकते हैं कि भाई किसी के पास कंटेम्प्ट की पावर है, बट उसकी जो डेफिनेशन होगी वो किसी पर्टिकुलर एक्ट में दी जाएगी, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है. तो थर्ड स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन नहीं है, तो वो थर्ड यहाँ से गलत हो जाएगा. अब आओ नंबर स्टेटमेंट नंबर 4. अब ये लाइक फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक ही है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही बचा है. नाउ द स्टेटमेंट नंबर 4. इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. चलो हमें नहीं पता कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है या नहीं है. अब स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक है, एक्ट के बारे में बात कर रहा है. 1971 एक्ट के बारे में बात कर रहा है. अब एक्ट कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है. लेजिस्लेचर बनाता है यानी कि पार्लियामेंट के पास तो पावर है. स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. तो यहाँ पेयरिंग मत रही है, मैं आगे बताऊंगा ये कॉम्प्लीमेंट वाली बात भी जब हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे. तो ये कॉम्प्लीमेंट है यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 4 दे मस्ट बी करेक्ट टुगेदर. ये दोनों जहां नहीं है वो ऑप्शन सही नहीं हो रहा. तो ऑप्शन बी ऐसा है जहां ये दोनों सही हैं, दोनों एक साथ हैं, तो ऑप्शन बी विल बिकम आंसर. बट इस क्वेश्चन का जो प्राइमरी मोटिव है वो ये बताना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, नो इट डज नॉट डिफाइंस. और जहां ऐसी यूपीएससी बात करता है कि इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जनरली इनकरेक्ट. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The Constitution of India clarifies the ministers into four ranks.
अब आपने पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, कहीं पढ़ा है कि कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या कहता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कहीं पढ़ा है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बारे में? नहीं पढ़ा ना। मतलब हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि भाई ऐसे सब डिवीजन होता है, बट जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर उठाते हैं, जब आर्टिकल 73 74 हम पढ़ते हैं, 75 76 जब पढ़ते हैं, तो वहां कहीं मेंशन है? नहीं मेंशन है ना। तो स्टेटमेंट वन बिकम्स रॉन्ग कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है वो चीज। अब सेकेंड है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% द टोटल मेंबर्स ऑफ। ये ठीक है, फैक्चुअल चीज है इसको। ये नॉलेज, ये है नॉलेज वाला पार्ट। ये है स्टैटिक पार्ट, ये आपको गलत नहीं करना है। यू कांट मेक इट रॉन्ग। अगर आपने ये गलत किया ना, तो आप रेस से पीछे जा रहे हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपको पता होना चाहिए। ये कोर प्रोविजन है आपका। जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हो तो ये कोर प्रोविजन है। दिस इज समथिंग नॉलेज, दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको पता होगा। तो सेकंड स्टेप इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ कम्स टू सेकंड थिंग, एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसेज। अब यूपीएससी क्या करता है ना, यूपीएससी खेलता है ऐसा ना कि 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस में ना ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता। जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले हैं ना, इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता। किसी में 8 स्टेटमेंट ठीक होती है, किसी में 2 होती है, किसी में एक भी नहीं होती। तो यूपीएससी, कुछ जो यूपीएससी के एग्जामिनर है ना, द एग्जामिनर्स ऑफ यूपीएससी, दे ट्राई टू प्ले विद द की थिंग्स लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हो रही, द इंस्टीट्यूशंस हो रही, ऑफिसेज हो रहे। यूपीएससी के एग्जामिनर्स उनके साथ खेलते हैं एंड दे मेक इट रॉन्ग, वो गलत बनाते हैं उसको। एंड ये रिपीटेडली यूज होता है। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, यू विल फाइंड इट कि ये काफी ज्यादा यूज हो रहा है एंड यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट। सो वी विल बी चेकिंग दिस राइट नाउ। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इतना डेप्थ में ना यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पढ़ने में लगता है कि सही है, बट ये ट्रैप है यूपीएससी का। दिस इज अ ट्रैप ऑफ यूपीएससी दैट इट एक्सचेंज द इंस्टीट्यूशंस, इट एक्सचेंज द ऑफिसेज, इट एक्सचेंजेस द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ लोकल बोर्ड्स नहीं है। दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग जैसे ही इसको रॉन्ग करेंगे, इट बिकम्स द। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप ब्लाइंडली इसको पेपर में लगा दोगे, नहीं। इट इज समथिंग विच वी जनरली रीड फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल। ज्यादा नहीं, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते, जो कि जब ये पेपर में आया था तो एक्सेप्शनली ही किसी ने पढ़ा होगा। बाकी जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सोल्व किया, दोज पीपल हु हैव सोल्व दिस क्वेश्चन, उन्होंने इस लॉजिक से ही सोल्व किया था, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम उस टाइम तक नहीं पढ़ते थे। इट इज टेकन फ्रॉम 2020, तो नहीं पढ़ते थे उस टाइम पे ये सब चीजें, मेजरली बच्चे नहीं पढ़ते थे। तो ये इसी लॉजिक से सोल्व हो रहा दैट यूपीएससी मस्ट हैव चेंज्ड ईदर ऑफ दीज। तो यहाँ से ये चीज गलत हुई, तो इट बिकम्स ऑप्शन बी। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In this question, 21st February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF। अब यूपीएससी यहाँ खेल लिया आपके साथ। पढ़ने में नॉर्मल लग रहा है, वैसे हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, बट अगर हम जनरली इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, यार हाँ यूनिसेफ हो सकता है, ऐसा दिमाग में आया दैट यूनिसेफ कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट नहीं, ये यूनेस्को होता है एंड सिमिलरली साउंडेड है। तो यूपीएससी ने इसे इसलिए एक्सचेंज कर दिया। अगर किसी ने पढ़ा भी होला रैंडमली कहीं पर, तो ही और शी माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल कि वो यूनेस्को था या यूनिसेफ था। तो ऐसा है कि इसके बेसिस पे ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट अपनी। स्टेटमेंट टू वी विल डिस्कस जब हम ये पेपर में सॉल्व करेंगे कि इस कैसे सॉल्व करना है। तो ये द प्राइमरी मोटिव इसकी यहाँ एक्सचेंज किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस को। नाउ कम टू थर्ड थिंग। हाँ, जैसे अब ये इंस्टीट्यूशन है ना, ऐसे ही मिनिस्ट्री भी गलत देते हैं कि कोई स्कीम दी होगी, कोई प्रोजेक्ट दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा दिया होगा जिसमें मिनिस्ट्री का रोल होगा। मेजरली होता है स्कीम्स के अंडर, कि कोई स्कीम है या कोई प्रोजेक्ट है उसके अंडर है, ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था कॉफी बोर्ड का, कि कॉफी बोर्ड इज समथिंग विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। तो ऐसे मिनिस्ट्री को एक्सचेंज कर देते हैं। मिनिस्ट्री जनरली गलत दी होती है, इट इज जनरली रॉन्ग। तो इस ट्रैप से हमें बचना है एंड दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द पीवाईक्यूज। तो ये ज्यादा प्रैक्टिस हम वहां करेंगे। नाउ कम्स टू फोर्थ स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स।
तो भाई दो स्टेटमेंट दी हुई है एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड इफ they are opposite to each other, they cannot be correct together. So, with reference to the provision contained in the Part 4 of the Constitution, which of the following statement is or are correct? They shall be enforceable by court, they shall not be enforceable by court. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नहीं है वैसे यहाँ पे, तो ये आपस में एक साथ ठीक नहीं होती, ठीक नहीं हो सकती। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं आपस में फर्स्ट एंड टू। अब ये तो आपका स्टैटिक नॉलेज है कि दैट वेदर टीपीएसपी आर enforceable or not, though they are not enforceable, so second statement is correct, first is not. The principal lead in this part are, ये तो चलो इन्फ्लुएंसर मेकिंग ये बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब मेजरली था कि मेरे को बताना कि कॉन्ट्रडिक्शन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं एंड दे कैन नॉट बी करेक्ट टुगेदर। इसका आंसर वैसे डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो इकोनॉमिक रिसेशन है, उसमें क्या करेंगे यूपीएससी, क्या स्टेप लिया जाएगा। लेट्स सी व्हाट यूपीएससी डज। Cutting tax rates accompanied by increasing, चलो ठीक है, increasing expenditure on public project, increasing tax rate चलो इसे छोड़ो, अभी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर सेम चीज है, बस यहाँ इंक्रीज है यहाँ रिडक्शन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एंड ईदर ऑफ देम मस्ट बी करेक्ट। एंड जस्ट प्योर समथिंग विच प्योर लॉजिक, और इसको एलिमिनेशन ट्रिक भी बोल सकते हो आप। इट इज समथिंग विच इज प्योरली डिराइव्ड फ्रॉम द PYQs एंड इट्स एनालिसिस। जब भी कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे BOD कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अनलेस इट एक्सपेक्ट्स यू टू सॉल्व विद द नॉलेज, अगर वहाँ नॉलेज वाली चीज़ है तो भाई वो नॉलेज से सॉल्व हो रहा, बट वो नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहा एंड उसमें लॉजिक लगाना है और उसमें एप्टीट्यूड लगाना है। तो जो दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आंसर मस्ट बी फ्रॉम ईदर ऑफ दो स्टेटमेंट्स, या तो आंसर बी हो रहा है या डी हो रहा। अगर ए और सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो ये तो आंसर ए हो रहा या आंसर सी होगा, तो ऐसे होगा। Then this we will find in other questions as well. Next thing is कि negative for negative and positive for positive. If something is given negative, तो उसका consequence भी negative ही होगा। If something is given positive, तो उसका consequence positive ही होगा। So negative for negative and positive for positive. System for rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practice. Something positive is given. अब जिसने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है उसे ही पता है कि भाई इट इज समथिंग पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव। लेट्स रीड द ऑप्शंस। रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट्स, समथिंग पॉजिटिव, यस। रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, yes, positive. Reduced electricity consumption, yes, positive. So answer will be D. अब ये कोई तुक्का नहीं है, कोई ये एलिमिनेशन की ट्रिक्स नहीं है, ये प्योर लॉजिक है एंड ये लॉजिक तभी डेवलप हो रहा है, ये एप्टीट्यूड तभी डेवलप होगा जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे एंड दीज थिंग्स लाइक मेक एन इंस्क्रिप्शन इन योर माइंड। और जब तक कि आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, टिल द टाइम दे आर नॉट कंप्लीटली इंस्क्राइब्ड इन योर माइंड, यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस बियॉन्ड 35। तो फिर वो मार्जिन पे अटक के रह जाओगे एंड प्रीलिम्स विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इजीली, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ PYQs। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जनरली रॉन्ग, इजी टू ट्वीट। अब जहां पर ना दो तीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल दो मिनिस्ट्री दे दी या दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे दिए, तो यार इट बिकम्स वेरी इजी फॉर UPSC एग्जामिनर कि किसी एक को बदल दे, किसी एक को बदल दे, चेंज इट वन, चेंज ईदर वन। और जैसे ही एक बदल गया तो ऑप्शन बिकम्स ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर 14. It is about water credit. So it puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. ये पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है, तो लेट्स लीव दिस स्टेटमेंट। It is a global initiative launched under the aegis of WHO and World Bank. अब नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा वाटर क्रेडिट क्या है, तो है क्या होता है हमें नहीं पता, बट PYQs के बेसिस पे हम एक लॉजिक डेवलप करेंगे, एक अपना एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे कि जहाँ एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, पहली बात तो एक ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है ना, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी होती है दैट इट माइट बी इनकरेक्ट। यहाँ तो दो दी हुई है, तो UPSC के पास ऑप्शन है, UPSC के पास चांस है कि इन दोनों में से किसी एक को गलत बना दे एंड व्हेन यू विल बी फाइंडिंग 10 क्वेश्चंस, उन 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत होंगे। कोई एक क्वेश्चन होगा एक्सेप्शनली जो करेक्ट हो जाएगा, बट
आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस विल बी सच जहां पर एक से ज्यादा स्टेक होल्डर दिया हुआ है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स दिए हुए हैं, तो इट विल बी इनकरेक्ट एंड वी विल फाइंड दिस थिंग इन द PYQs. जब हम PYQs को प्रैक्टिस करेंगे वी विल फाइंड इट. सो या सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग एंड आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार अब तो यूपीएससी वो ओनली 1 दे रहा है, ओनली 2 दे रहा है. कोई नहीं बेटा, अभी 2023 24 25 के पेपर सोल्व करेंगे, वहां भी ये लॉजिक लगेगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस वेरी इजीली. हाइप बनी थी कि एलिमिनेशन एलिमिनेट कर दिया है यूपीएससी ने, ऐसा कुछ नहीं है. यूपीएससी का पैटर्न वही है, बस ऑप्शंस बनाने का तरीका बदल दिया, बट स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका भी वही है. सो वी विल बी डीलिंग विद दैट ऑल्सो. नाउ कम टू, आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है एंड इन केस यू आर getting some doubt you can watch it again or you can write me a mail at rantrust.approach.csc@gmail.com. आप मुझे यहाँ भी मेल कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज. इमीडिएट रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा बट या आई विल श्योरली रिप्लाई यू. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट. फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी. लाइक फेवरेट थीम क्या ना, अब जब आप PYQs को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि सर्टेन कुछ चीजें हैं, सर्टेन थिंग्स आर देयर, सर्टेन टॉपिक्स आर देयर जो यूपीएससी को भी गलत करते ही नहीं है. अगर वो चीज वहां मेंशन है तो 99.99% चांस है कि वो ऑप्शन ठीक होगा. वो कौन से हैं? जैसे कि अपना हो गया है तो अकबर, कृष्णदेवराय, विजयनगर, अंडमान निकोबार. जैसे वो एप्पल वाला वो है ना, बनाना लीफ वाला क्वेश्चन आया था जिसमें बस्सी ने वो मीम भी बनाया था, तो वो ये था, उसमें अंडमान निकोबार ऑप्शन था और वही उसका आंसर था. तो इट इज अ फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी. गांधी जी और अजंता, अजंता वो अपना अजंता केव वाला, ये अजंता केव्स वाला, और अपने अशोका, ये फेवरेट थीम्स है यूपीएससी की. ये जहां मेंशन होंगे पोर्ट्स, पोर्ट्स, लैंड, कॉइन्स, ये चीजें जहां मेंशन होंगी मोस्ट प्रोबेबली द हायर पॉसिबिलिटी इज कि ये ठीक होंगे. सो हाँ PYQs में हम देखेंगे अभी. सो whosoever praise his religious sect, और इवन हाँ इसमें कृष्ण देव राय, ठीक है. अब इसमें जैसे पढ़ते हैं whosoever praises his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अब आप बोलो यार इसमें तो अशोका भी है, KDR भी है, कौन सा लग रहा है? अशोका ज्यादा फेमस है, केडीआर कम फेमस है, कृष्णदेव राय कम फेमस है, बिकॉज अशोका इज अ बेटर नेम. ऐसा नहीं है कि भाई कोई डिफेम नहीं है कृष्णदेव राय जीत ले, बट या कंपैरेटिवली अशोका इज अ बेटर नेम, क्योंकि मौर्यन एम्पायर वाज रिलेटिवली बेटर देन द विजयनगर एम्पायर. तो अशोका इज अ बेटर नेम एंड अशोका इज अ मोर पॉपुलर नेम देन कृष्णदेव राय. सो इन दिस सेंस ए बिकम्स द आंसर. कोई तुक्का नहीं है, कुछ नहीं है, जिसे आता है वो नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर लेना. बट इफ समवन इज स्टक कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड दिस क्वेश्चंस आर नॉट स्किपेबल, इनको स्किप नहीं करना है, ये लॉजिक से, ये एप्टीट्यूड से बहुत इजीली सॉल्व होते हैं. सो सच क्वेश्चंस आर, यू डोंट हैव टू स्किप दीस क्वेश्चंस, you have to solve them. So this is something favorite theme of UPSC. Now let's check the second question. Which one of the following statement is correct? Ajanta caves lie in the gorge of Varora River. Sanchi Stoop lies in the gorge of Chambal River. Pandu Lena Cave Shrines lies in gorge of Narmada River, and Amravati Stoop lies in. देखो यार अभी इतने सारे फैक्ट हैं कि सही याद रहेगा, बट जब आप ये ना अजंता वाला चीज जो है ना यूपीएससी 2013 से पहले बहुत यूज करता था, जहाँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर अजंता के बारे में काफी बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है या ऑप्शंस में दिया हुआ है एंड मेजरली वो अजंता ठीक होता है. तो उसके लॉजिक के बेसिस पे अजंता ठीक हो जाएगा, क्योंकि अजंता इज अ यूपीएससी का फेवरेट थीम है, यूपीएससी का पॉपुलर थीम है. तो जहां पर ये अजंता आ गया वो ठीक है. अब इसको तुक्का बोल सकते हो कि भाई तुक्का है, बट वैसे तुक्का नहीं बोलूंगा. इट इज नॉट अ कंप्लीटली अ गेस वर्क, ये PYQs का एनालिसिस है. जब आप खुद से पढ़ोगे यू विल फाइंड इट. तो ये PYQs के एनालिसिस के बेसिस पे है. सो इट इज समथिंग कि ये आंसर होगा. सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हेयर ओनली. From the next video we will be continuing with the other things like odd one out, similar language in true statement, facts and data in true statement, random variable, deliberate extension of statements, comparative statements, broad objective of policies, Britishers, freedom fighters, application based questions, prelims with the possibility, statements with the possibility, extreme words phrases,
And yeah, words association, game of probability, pair in similar statements, similar go together, and dissimilars cannot. Common sense है, of course it is not common these days, so there will be 3 to 5 questions जो common sense से solve हो जाते हैं. ठीक है, वो अभी हम देखेंगे आगे जाके. And there will be something art of letting go which I will be telling you in the next video, and something a special message for you. So yeah, from there on we will be continuing in the next video. Till then, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना तो मत करना, बट आई एम श्योर कि इट इज पॉसिबल कि एल्गोरिथम आपको ये वीडियोस दोबारा ना दिखाएं. इन केस यू वांट टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दोज वीडियोस, दीज वीडियोस, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल. एंड ये वीडियोस आती रहेंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट वीक तक आपकी मैं ये क्लासेस करवा दूं कि टिल 2025 तक हो जाए, एंड 2025 के आंसर की भी आ जाएगी तब. तो एक एंड 2025 में क्या है ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई मैंने इन क्वेश्चंस में ऐसे ब्लेंडर किया था, इन क्वेश्चंस में मैंने ऐसे अप्रोच को फॉलो किया था, एंड विद दिस वी विल बी डीलिंग विद द थिंग्स, एंड ऐसे सॉर्ट हो जा रही चीजें. सो या फॉर द नेक्स्ट, लाइक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना पढ़ते रहिए, फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस. अभी रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में मत बहना. जो हो चुका है वो ठीक है, उसे बदल नहीं सकते. एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर दिस ईयर 2026, गिव योर बेस्ट. टाइम कम है, एंड टिल देन बाय. जय हिंद. सी यू अगेन in the next video.